Hello students, welcome to the next lecture on the non-homogeneous linear partial differential equation. Today I will explain you how you can find the particular integral when the right hand side of the differential equation or partial differential equation is of the product form. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the partial differential equation. You can see the previous type 1, type 2 and type 3 are already uploaded for all of you. How we can find the solution of any non-homogeneous linear partial differential? We always try to find the firstly the complementary functions and the particular integral. How we can find the complementary functions? That we already discussed based on the two different topics called as the reducible and irreducible non-homogeneous. ये लेक्चर भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर you can see complementary function for the reducible, complementary function for the irreducible. Now today we will learn how we can find the particular integral when the right hand side is of the particular product form. ये product form, it may be of the exponentials with the help of the g. It can be that g, it may be the constant, fine. It may be the polynomial, fine. It may be the sine, it may be the tan, it may be the logarithm and so on. Clear? The rule is a very simple. Whenever the exponential term present in the particular solution, तो आप क्या करोगे? You can take an exponential term is outside, e की power ax plus by is outside, and wherever the capital D is written, you can replace by d plus a, and d prime will be d prime plus b, where a and b are the coefficient of the x and the coefficient of the y in the exponential term. Fine. अब इसके बाद whatsoever the nature of the g, अगर ये polynomial है, whether it's a sine and cosine or any form, we can apply the type 1, type 2 and the type 3 as we discussed in our previous lecture. But अगर मान लो आपके पास यहाँ पे साइन हो ही ना, सॉरी एक्सपोनेंशियल हो ही ना, और वहां पे आपके पास साइन और कोसाइन है, so can you convert or can you write sine and cosine terms in terms of the exponential? Yes, you can do. You can write e की power ax plus by into g of xy, but because we need a sign, so that is my imaginary part of the exponential. Similarly for the cosine is a real part of the exponential. जैसे exponential मिला, you can apply the same rule. Taken e की power iota ax plus by is outside and replace capital D to be the d plus iota a, because the coefficient of the x is iota a, and d prime to be d prime plus iota b. Clear? So I will explain you with the help of the several example in this video. चलिए, your target is to find the general solution. That means your target is to find the complementary functions and the particular integral. ये आपके पास क्या है? Is a linear factor, so that function or that partial differential equation is my reducible non-homogeneous PD. And how you can write the complementary functions for the reducible non-homogeneous PD, I can explain, or I already explained you with the help of the 15 plus numerical example in that last video. चलिए, I can write quickly for you e की power 2x f1 y plus 3x. Now because of the square, I can write as a x into repetition of the term, where f1 and f2 are my arbitrary functions. How you can write the pi's? I can write as a 1 over operator into terms. So I can taken twice exponential term is outside, तो क्या करोगे? रिप्लेस कैपिटल D to be the d plus a आपका कितना है? 2. What is the d prime? What is the coefficient of the y? 0. So कहीं पे भी d लिखा हुआ है, उस पे d plus 2 कर दो और d prime आपका सेम रह जाएगा. फाइन. बाकी आपके पास साइन ऑफ x प्लस और साइन ऑफ y प्लस 2x आ गई. जब आप ओपन करोगे 2 and 2 will be cancel out. फाइन. क्या बच गया पीछे? 1 over d minus 3d prime of whole square into sine of y plus
2x 3x. अब देयर आर द टू मेथड्स, फाइन, क्योंकि ये साइन है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे वाली ब्रैकेट खोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 इंटू डी प्राइम, और उसके बाद डी स्क्वायर को क्या फिल करोगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स, डी प्राइम स्क्वायर इज अ माइनस ऑफ वाई एंड डी इंटू डी प्राइम इज माइनस ऑफ ए बी, जैसा हमने लास्ट लेक्चर, किस लेक्चर में सीखा, साइन एंड कोसाइन फॉर्म में, क्लियर। बट सेकंड मेथड इज, अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, सिर्फ इतने वाले पार्ट को, क्या ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, इट्स अ होमोजीनियस, कांस्टेंट टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, तो जब ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस में हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे, आप होमोजीनियस वाला पार्ट भी आप देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में, यू कैन सी दिस वन, टाइप 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पीडी होमोजीनियस केस, फाइन। तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते थे, यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू a एंड d प्राइम टू बी b, तो जैसे ही आप फिल करोगे ये आपके पास 1/0 हो जाएगा, फाइन। तो जैसे केस ऑफ फेलियर था तो आपने क्या रूल बताया था मैंने आपको, यू कैन राइट, फाइन, x की पावर, ये कितनी पावर है इसकी, 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू कोएफिशिएंट ऑफ द d इज 1 रेज टू पावर 2, ये आपके पास आंसर हो गया, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द केस ऑफ फेलियर ऑफ द होमोजेनियस केस, फाइन। तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन करा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, फाइन। अदरवाइज आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए एंड देन अप्लाई दी टाइप नंबर 3, दैट इज द साइन एंड कोसाइन रूल, you have the complementary function, you have the particular solution integral, you can add them and get the required general solution of the problem. Look at the next one. Okay, क्या आप इसके फैक्टर बना सकते हो, ये 3 है 2 है, it can never be factor, so not a linear form. तो अगर लीनियर फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये that is my irreducible. Once is irreducible, you can write the complementary function is a e की पावर hx plus ky, where f of h comma k is my 0, फाइन। मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं, where f of h comma k will be my 0, I can substitute the value, h d is my h, 3h square minus 2k square plus h minus 1 is equal to 0, फाइन। आप यहां से चाहे तो h की वैल्यू निकाल लो, चाहे k, h में तो क्वाड्रेटिक बनेगा, फाइन। आप यहां से k की वैल्यू निकाल लो, आप 3h स्क्वायर प्लस h माइनस 1 over 2 is equal to k square, fine. I can substitute the value of the k in the required complementary functions. Otherwise आप इसको ऐसा ही लिख दो, you can write as a h k are me constants. You can write the pi 1 over operator, fine. अब एक्सपोनेंशियल भी है और कोसाइन भी, इस चीज को बाहर ले लो आप, 4 e की पावर x प्लस वाई, तो कैपिटल D को किस में रिप्लेस करोगे, d प्लस 1 में, और d प्राइम को d प्राइम प्लस 1, आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, फाइन, एंड देन ओपन द ब्रैकेट, अब आप इसकी ब्रैकेट खोल दो, e की पावर x प्लस वाई, फाइन, इट इज अ 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली सेकेंड टर्म की, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करके इफ यू डू दैट आपके पास ये आंसर आ जाएगा, फाइन। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल कोसाइन है, कोसाइन का रूल लगा दो, क्या फिल करेंगे, डी स्क्वायर टू बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर, डी प्राइम स्क्वायर टू बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर, एंड डी इंटू डी प्राइम इज माइनस ऑफ ए बी, करो फिर इसमें, इसे माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2 प्लस 7d माइनस 4d प्राइम प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई, तो ये कितना हो गया, 3 and 3 कैंसिल आउट, दैट विल बी 1 over 7d माइनस 4d, फाइन। अब क्या कर सकते हो, दो मेथड बताए थे आपको, इधर यू कैन रेशनलाइज इट और यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल D, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कैपिटल D हो जाएगा, दैट विल बी द d स्क्वायर एट इट विल बी d इंटू d प्राइम, फाइन। वैल्यू फिल कर दो, अब आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, व्हाट इज द कैपिटल D स्क्वायर, माइनस 1 d इंटू d प्राइम इज माइनस 1 इंटू कोसाइन x plus y, so that will be minus 4 over 3 is outside, e की power x plus y, what is the meaning of that d, is a derivative with respect to x,
sine of x plus y is the required answer, pi of the problem. Or you can say minus and minus is a plus, so 4/3 e की power x plus y sine of x plus y. Finally you can add them is the required solution of the problem. चलिए look at that, ये सेम फंक्शन है जो पहले एग्जाम्पल में करा था. फाइन, यू कैन राइट द कंप्लीमेंट्री फंक्शंस. अच्छा, इसमें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ही पूछा है. फाइन, आई कैन राइट द पर्टिकुलर इंटीग्रल. अगेन taken 2 e की power 2x is outside, then you can replace capital D to be the d plus 2, d prime to be d prime plus 0. तो ये कितना बन जाएगा, d minus 3d prime whole square into tan of y plus 3x. Now clearly say it is a homogeneous. फाइन, तो होमोजीनियस में तो आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर देना है, d की वैल्यू a, कोफिशिएंट ऑफ द x, d प्राइम टू बी 1. यू कैन सी इट्स अ 0. तो अगर 0 है तो फिर से वही वाला रूल लगा दो, x की पावर कितनी पावर है इसकी, 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द d, कोफिशिएंट ऑफ द d इज 1 पावर 2. और बाकी क्या बचा आपके पास, tan ऑफ y plus 3x is the required solution of the problem. ये 2 फैक्टोरियल एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर e की पावर x tan of y plus 3x is the required solution of the problem. Make sure students ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस पीडी के ऊपर लगेगा आपके पास. फाइन, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए और उसके बाद एक्सपेंड करिए आप. चलिए इसके नेक्स्ट वन इज ये तो अकेला एक्सपोनेंशियल है, तो यू कैन इजिली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द एक्सपोनेंशियल रूल. टाइप नंबर 2 से सॉल्व कर सकते हो आप. फाइन, बट अगर मैं इसके फैक्टर बना दूं, d माइनस डी प्राइम, d प्लस डी प्राइम, और यहां से -3 कॉमन लेके d माइनस डी प्राइम. अगेन d माइनस डी प्राइम इज थ्रू आउट कॉमन. फाइन, तो वहां से आप इसका CF निकाल सकते हो, लेकिन यहां तो अकेला PI पूछा ना आपसे, तो यू कैन राइट एज ए PI. तो सब्स्टिट्यूशन करो. एक्सपोनेंशियल का क्या रूल था, यू कैन सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू a एंड d प्राइम टू बी b. तो कितना आंसर हो गया ये, 1 minus 4 minus 3 plus 6 e raised to power x plus, now you can see it's a 1 over 0. it's a case of failure. फाइन, तो जब भी केस ऑफ फेलियर था तो क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लो आप. फाइन, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, इसके साथ 1 लगा लो. तो क्या करेंगे, d को रिप्लेस कर दो d प्लस 1 में. फाइन, और साथ में इसका 1 का 1 रह गया. चाहे तो फैक्टर बना लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, यू कैन टेकन एज ए आउटसाइड. चॉइस आपकी है. इट्स द फर्स्ट मेथड. फाइन, इसके ब्रैकेट खोल लो. फाइन, और अदरवाइज जैसे मैंने आपको इसके फैक्टर बनाए ना, आपको d माइनस डी प्राइम, d प्लस डी प्राइम माइनस 3, तो आप ये वाला चीज पहले लिख दो आप. फाइन, तो आप इसमें देखोगे ये वाला चीज आपके पास क्या हो रहा है, 0 बन रहा है, लेकिन ये नॉन जीरो है, तो इसकी वैल्यू पहले इसमें फिल कर दो आप. क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस 2. फाइन, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 माइनस 2 का -1, तो ये -1. नाउ इट्स अ केस ऑफ फेलियर. अब आप एक्सपोनेंशियल टर्म को बाहर ले लो. फाइन, और d को रिप्लेस कर दो d प्लस 1 से, और d प्राइम को रिप्लेस कर दो d प्राइम प्लस 2 से. तो आप इसको सॉल्व कर लो. सो दैट विल बी e की पावर x प्लस 2y 1 ओवर. फाइन, अब इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं, और x0 y0, तो आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो आप. 1 ओवर d बाहर ले लिया, so that will be 1 plus d prime over d raised to power -1. बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो डिग्री 1 तक आपके पास, you will get the मैं यही कर देता हूं आपके लिए, e की पावर x plus 2y 1 over d 1 minus d prime over d and so on. तो जैसे 1 के साथ ओपन करोगे तो that quantity will be 0. तो आपके पास क्या रह गया, e की पावर x plus 2y 1 over d into 1. तो करो इसका 1 over d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपके पास आंसर हो गया x इंटू e की पावर x प्लस 2y इज दी राइट. और ये -1 तो पहले से बाहर चल रहा था ना, तो दैट्स वाई माइन इज दी कॉमन. चलिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे r की वैल्यू फिल करो, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हैं,
कैपिटल डी स्क्वायर यू, एस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक्स एंड वाई है, सो डी इंटू डी प्राइम. व्हाट इज द टी? टी इज माई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दैट्स a d prime square u. What is the p? P is my del u upon del x, that is a capital du, and q will be del u upon del y, that's a d prime of u. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कितना कितना होगा, डी स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस 2 इंटू डी प्राइम स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 डी प्राइम ऑफ u इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आपका क्लियर. ये डिग्री 2 है ना सबकी, इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके माइनस 2d प्राइम d इंटू डी प्राइम, फाइन, माइनस डी, फाइन, इसके फैक्टर बना लो आप कॉमन, तो यू विल गेट दी d माइनस डी प्राइम, d माइनस 2d प्राइम. इन दोनों में से d माइनस 2d प्राइम कॉमन, you will get these factors. Can you write the linear factor? Oh sorry, can you find the complementary functions? फर्स्ट वाले पार्ट के लिए e की पावर 1x f1 y plus x f2 of y plus 2x. pi लिखना है, तो ये आपका पूरा फाइनल एक्सप्रेशन बनाना, इसको इसके नीचे लिख दो इंटू 2 प्लस 4x e की पावर माइनस 5. तो सबसे पहले e की पावर है, इसको बाहर ले लो, तो क्या रिप्लेस करेंगे, d को किससे रिप्लेस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ दी x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, 0, d प्राइम टू बी d प्राइम माइनस 1, तो यहाँ पे d लिखा हुआ है, वहां पे d, और d प्राइम को d प्राइम माइनस 1. तो जैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, इसको d प्राइम माइनस 1 करा, फाइन, और सेकंड चीज d और d प्राइम माइनस 1, तो आप यहाँ देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ओपन द ब्रैकेट, फाइन. नाउ अब यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल के लिए कौन सा रूल लगाया था आपने, टाइप नंबर 1, तो फैक्टर बना दो बस आप, फाइन, इसमें से d कॉमन, तो दैट विल बी d यहां से कॉमन, सो 1 माइनस डी प्राइम ओवर डी, यहां से 2 कॉमन, आंसर. x की पावर 1 है तो सिर्फ एक बार एक्सपेंड करना है आपको, अप टू द डिग्री 1 ओनली, 1 प्लस डी प्राइम ओवर डी एंड सॉन, इधर भी एक्सपेंड कर दो, 1 ओवर 2 प्लस सॉन, क्लियर, इनटू 2 प्लस 4x, ब्रैकेट ओपन कर दो. अब तो बाकी तो सारा टाइप 1 ही बन गया आपके पास, फाइन, 1 प्लस डी प्राइम ओवर डी, तो करो ब्रैकेट इसकी ओपन, 2 प्लस 4x माइनस डी, डेरिवेटिव करो x के साथ, इस 4 माइनस डी प्राइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव से 0, फाइन, आगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 2, 2 से ये 2 भी कट गया, तो कितना रह गया ओनली 4x, फाइन. अब इसकी भी ब्रैकेट खोल दो, e की पावर माइनस वाई 1 ओवर 2d 4y 4x, d प्राइम इज अ 0, फाइन, तो ये 0 बन गया, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, सो e की पावर माइनस वाई 1 ओवर d इंटू 2x, व्हाट इज द 1 ओवर d, इज अ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आंसर हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर इज अ रिक्वायर्ड particular integral of the problem. Once you have the particular integral, complementary function, you can add them, you can get the general solution. चलिए look at the next one again. ये it's a non-linear है आपके पास, fine, और irreducible है, you can easily write the complementary function. Particular integral की बात करते हैं, इस एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लो, फाइन, d को रिप्लेस कर दो d प्लस 1 से, और d प्राइम को d प्राइम प्लस 1 से, ब्रैकेट ओपन कर दो, यू विल गेट a प्लस बी होल स्क्वायर, फाइन. अब x है आपके पास, तो कॉमन ले लो, आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी ना, सो 1 ओवर 2d, इसको 1 बना लिया आपने, तो बाकी क्या रह गया पीछे, d स्क्वायर माइनस d प्राइम ओवर 2d रेज टू पावर माइनस 1, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, सो दैट्स a d ओवर 2 एंड d डैश d प्राइम ओवर 2d. अब ब्रैकेट ओपन कर दो, दैट्स ओवर.
1 ओवर कितना हो गया x माइनस x के साथ डेरिवेटिव 1 ओवर 2 d प्राइम इज अ जीरो। आगे तो डी स्केयर आएंगे ना, वो सारे जीरो जाएंगे। वाई? क्योंकि डी स्केयर मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दी एक्स, वो सब जीरो हो गए। तो कितना रह गया? एक्स माइनस हाफ। 1 ओवर डी का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस वाई 1 ओवर 2 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस हाफ। तो कितना हो गया ये? एक्स स्केयर बाई 2 x बाई 2। फाइन, 2 बाहर ले लो आप, तो 1 ओवर 4 हो जाएगा आउटसाइड। x square minus x is the required general solution of the problem. This question as an exercise for you. You can see the exponential terms, product form, exponential cosine, and then so on. You can try to solve it by own. Let me know if you have any doubt in these lectures. We will start the next lecture series on the second order partial differential equations, hyperbolic, parabolic, elliptical classification very soon. Till then, you can share this video, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.